Why is it so? ऐसा क्यों है? Learners, this is because every country has a constitution, even if some might not have. Democracy generally have constitution, and it is the governance or the government runs on the basis of their own constitution. So our constitution is different from the constitution of USA. That is why we hear more about the Prime Minister of India and more about the President of USA. Now, when we are talking about democracy, in the previous sessions, I told you about the political system at a glance, about the federal system in our country, about the parliamentary form of government, about the constitutional values. We have learned little bit about almost all topics. So our concern today will be the constitutional values and the political system of India. What is the purpose of this constitution? What are the ideals? What is the preamble? And what do the preamble contains? What are the guiding principles of the document, that is constitution? And we will also discuss the sovereignty, socialism, democracy, republic, fraternity, etc. Talking about the values again, we all know we have a written constitution and one of the lengthiest constitutions of the world. And it is a unique blend of rigidity and flexibility. Some countries have a very rigid constitution, but we are fortunate to have a constitution where we can make some amendments. Then again, we are fortunate that we are provided fundamental rights in our constitution, through our constitution, and for our dignified and self-respect. These rights are necessary for every human being. Then another important feature is we consider our constitution supreme, right? And when we consider our constitution supreme, our judicial system is also referring to the constitution while giving judgments. Though we have independent, integrated judiciary, but mind it, constitution is supreme. We are given the right to vote, that is universal adult franchise. And we have a federal system where power is shared. So our constitution is not only vast, it is a very beautifully written constitution and contains almost all the good things which can make a country prosper and grow, and especially a democratic country like India, where so many diversities exist. With the help of a presentation, I would like to explain this chapter. So let us begin. Let us begin our constitutional values. And can you see the slides, ma'am? It's visible, ma'am. You continue. Okay. So, constitutional values and political system in India. First of all, we should know the meaning of constitution. You must have heard about the constitution and the definition of the constitution in class 8th, 9th, and so on. It is a set of fundamental principles, basic rules, and established precedents to run and regulate the various parts and aspects of the state and its structure. Dear learners, state here means nation. So Constitution provides for the rights and freedoms of the citizen and defines the relation between the individual and the government. So to frame new rules, laws, Constitution is there. It contains
power and the functions of the major institution under the three organs of the government. As you all know, the three organs of the government are legislature, executive, and judiciary. Legislature makes law, executive carries out the law, and judiciary evaluates or interprets the law. The doctrine of separation of power is apart from the basic structure of the Constitution. This is also known as horizontal distribution of power. Here, legislative can put a check on executive and executive can see whether the law is proper or not. And if there is any confusion, we have a judiciary who can check both legislature and executive. So this is a system of check and balances. Constitution of India. This is the front cover of the Constitution of India when it was written. The Constituent Assembly began to prepare the Constitution on 9 December 1946. Dr. Rajendra Prasad, the first President of India in 1946, they start preparing the Constitution, and Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar was made the chairman of the drafting committee. And as you all know, he is also known as Father of Indian Constitution. Now here we see again the Constitution, the flag of India. The Constituent Assembly met for 166 days, spread over a period of 2 years, 11 months, and 18 days. The making of the Constitution was completed on 26 November 1949, when the Constituent Assembly adopted the draft Constitution of India. And furthermore, we will be discussing about why it was adopted on 26 January, not on 26 November, though it was completed on 26 November 1949. Now, what are the influences from which this Constitution has been drawn? Actually, we struggled a lot for the freedom of our country. The aspirations of the people generated during the freedom struggle has made this Constitution more flexible, rigid, and you can say comprising of all those the freedom fighters aspire for. Then the constitutional and political changes that took place during the British rule, like the Government of India Act of 1919 and the Government of India Act of 1935, we are also inspired by those acts also. So we have incorporated certain things from that too. We have incorporated the Gandhian philosophy, his ideas and his thoughts in the Constitution of India. We have social cultural ethos. The diversity of India is also considered while writing the Indian Constitution. And we have taken the experiences of the functioning of the Constitution in other democratic countries, जिन देशों को पहले आज़ादी मिल चुकी थी और जो प्रजातंत्र थे, लोकतंत्र थे, उन देशों में जो संविधान बना था, उस संविधान से भी इंस्पिरेशन और उस संविधान की भी अच्छी बातें लेकर, बिकॉज हमने उनकी फंक्शनिंग पहले देख ही ली थी, तो उसके एक्सपीरियंसेस पर भी हमने कुछ चीजों को अपने संविधान में रखा है. This is the picture of the Constituent Assembly. On 9 December 1946, the Constituent Assembly met for the first time. The Constituent Assembly was the first parliament of independent India. Constituent Assembly है क्या? Constituent किसी चीज को जब कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो उसके लिए एक ग्रुप जो बनाया जाता है, members of that group are known as constituent assembly. यहाँ पर संविधान बनाने के लिए जिन लोगों को हमने चुना था, they were all the member of the Constituent Assembly.
Here you can see Dr. Sachidananda Sinha, the first president, temporary chairman of the Assembly, of the Constituent Assembly. He was the temporary chairman of the Constituent Assembly, and they all met on 9 December 1946 and begin to think about making of the Constitution. In this picture, you can see the members of the Constituent Assembly signing the Constitution of India. Right? Then here you can see our first president, Dr. Rajendra Prasad. He was also the president of the Constituent Assembly. Here he is addressing the Independence Day session of 15th August 1947. Now let us come to the provisions in the Constitution regarding Constitution. In Hindi we call it Sanvaidanik Pravdhan. The provisions in the Constitution is that it will be applied to the territories that India will comprise. It contains topics related to the citizenship, like we'll be having dual or single citizenship, what will be the norms of the citizenship. It contains fundamental rights. Regarding fundamental rights, how many fundamental rights would be given to the citizens of India, and what are actually the definition and what is to be done in these fundamental rights. It is all written in the Constitution. There is a statement of directive principles of state policy and reference to fundamental duties also. Then there is a structure and functioning of the government at union, state and local level. These provisions are also given in the Constitution of India. Several other aspects. It is so big, so vast. I cannot mention what is all written in the Constitution of India, but there are almost everything about the political system of India written in the Constitution of India. Now here, this picture I have especially showing you to see the original. This is the original copy of the Indian Constitution, both in Hindi and in English, and it is kept in special helium-filled cases in the library. ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की लाइब्रेरी में रखा गया है, जहां पर हीलियम गैस जो होती है उनको फिल कर इस तरह से, जिससे कि ये खराब ना हो. इट इज इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. Coming to the constitutional values and the preamble of the Constitution. Preamble, प्रस्तावना. प्रस्तावना पहला पन्ना. अक्सर आपने किताबों में देखा होगा कि शुरू में एक पेज दिया होता है जिसमें लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनी रिजॉल्व्स. इस तरह से वो क्या है? वो हमारे संविधान का पहला पेज है, which we call preamble of the Constitution. So preamble of any constitution is a brief introductory statement that conveys the guiding principles of the document. जैसे कि एक जिस्ट और समरी होती है किसी चीज की, उसी प्रकार से प्रियम्बल या प्रस्तावना संविधान का एक ऐसा पन्ना है या ऐसे पेजेस हैं जिसमें लिखा हुआ है कि क्या हमारा संविधान कहता है. इन शॉर्ट, इट इज द जिस्ट और द समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. The values expressed in the preamble are expressed as objectives of the Constitution. हमारे संविधान का उद्देश्य क्या रहेगा, ये सब लिखा हुआ है preamble of Indian Constitution. So this is that first page, preamble of the Indian Constitution. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all citizens justice, social, economic
and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity. And last, in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So I was reading the preamble of the Constitution, the first page of the Constitution, which we call प्रस्तावना. यहाँ पर आपने शुरू में, अब ये जिस्ट है, यहाँ पर लिखा है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे. First of all, sovereignty. It means that our country has complete political freedom and is supreme authority to take its own decision. Sovereignty का मतलब जो है कि हमारा देश पूर्णतः राजनीतिक रूप से आजाद है और हम अपने देश से संबंधित निर्णय खुद लेंगे बिना किसी की एक्सटर्नल प्रेशर के प्रभाव में आए हुए. कोई भी बाहरी जो ताकत है या कोई विदेशी जो है हमको बाध्य नहीं कर सकता किसी भी डिसीजन को लेने के लिए. We do not have any external pressure. हम आजाद हैं और हम पर किसी बाहरी विदेशी ताकत का दबाव नहीं पड़ सकता. And nobody is there to challenge our authority. The sovereignty of India lies in the people of India. It means that all the organs of the government and the constitution authorities draw their powers from the people of India. Then comes socialism. From each according to its ability and to each according to his needs. अब देखिए, सोशलिज्म का मतलब ये नहीं है, समाजवाद का मतलब ये नहीं है कि सबको बराबरी मिलेगी हर चीज में. बराबरी उनको मिलेगी जिनका कैलिबर एक है, जिनकी एबिलिटी समान है, वहां पर हम सोशलिज्म को लाएंगे. And according to the need, they will be given the benefits. It is a value which aims to promote social change and transformation to end all form of inequalities. जैसे कि आप देखते हैं कि if there is a private company and if it is a government sector, तो वहाँ पर government employees को जो facilities दी जाती हैं वो सभी को दी जा सकती हैं. But in a private company, if an individual is the owner of the company, it depends on the wishes of the owner of the company to give benefit to whom and not to give benefit to another. So here by socialism, we mean that we will try to bring out equality according to the ability of the person. Here you can see socialism aims to end the concentration of wealth and power in the hands of a few and to ensure social development in all fields. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब बराबरी पर हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि the concentration of wealth is in some particular hands. And why this is so? Because if an individual is the owner and if most of the institutions in the country are in the private sector, or if privatization is done, this may happen. The gap between rich and poor will widen if all the institutions in the country are in the private hands. Then talking about secularism. बहुत से देशों में आपने देखा होगा कि कुछ ही धर्म हैं. ज़्यादातर आपने वेस्टर्न कंट्रीज में देखा होगा कि क्रिश्चियनिटी है. तो वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं जिस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे देश भारत में आ जाती हैं. किस तरह की प्रॉब्लम्स? क्योंकि इतने सारे धर्म हैं और इतने सारे धर्म जब हैं तो उनकी पूजा पाठ, रहने सहने, खान पान,
त्योहार, ये सभी जो हैं भिन्न हैं, और ये सभी जब भिन्न हैं तो कहीं ना कहीं पर ये विभिन्नता जो है क्लैशेस ओरिजिनेट कर सकती है या ला सकती है। इसी चीज को खत्म करने के लिए कि इस तरह के भेदभाव, लड़ाई झगड़े, दंगे हमारे देश में ना हो, हमने एडॉप्ट किया सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म कहता है कि हमारे देश में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है and no discrimination would be made on the basis of religion. भारत ने किसी धर्म को ऐसी प्राथमिकता नहीं दी है कि आप उसी धर्म को पालन करने के लिए बाध्य हैं, right? Even say it is the principle of the separation of government institution and persons mandated to represent the state from religious institution. आपने देखा होगा स्पेशली इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी हम लोग जो प्रार्थना या असेंबली होती है स्कूल्स में, उसमें वो किसी धर्म से संबंधित नहीं होती है। जैसे कि हमारे केंद्र विद्यालय संगठन में ही दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, वो किसी धर्म से संबंधित नहीं है। हर धर्म के लोग इस प्रार्थना को गा सकते हैं और इसमें वो विद्या अर्जन करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो ये हमारे देश की संविधान में लिखा हुआ है, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू एकोमोडेट द डाइवर्सिटीज ऑफ इंडिया, स्पेशली रिलीजियस डाइवर्सिटीज। इन इंडिया everybody is allowed to profess, preach and practice any of the religion of his or her choice। और इसीलिए हम कहते भी हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। जितना हम यूनाइटेड रहेंगे, we have given an example to the world, instead of having so many religions, इतने धर्म होने के बावजूद भी भारत की एकता दर्शाती है कि किस तरह से हम मजबूत हैं। इन विभिन्नताओं को एकोमोडेट हम किस तरह से इस देश में कर रहे हैं। It is one of the largest democracy of the world। अब एक और शब्द प्रस्तावना की उसमें आया था, डेमोक्रेटिक। इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं। What is democracy? Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. It is a representative form of democracy। हम चुनाव में वोट देते हैं और उस वोट के आधार पर जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं हमारे बीच से ही गए हैं। एज अब्राहम लिंकन सेड, इट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। हमारे बीच में से जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है प्रजातंत्र या लोकतंत्र। हमारे बीच में से ही चुने गए हैं नेता, हमने ही चुने हैं नेता, और शासन वो किस पर करेंगे? हम पर करेंगे। देन here you can see we have electoral system, that is we are having universal adult franchise and we ensure one man, one vote, one value। भारत में हमने चुनाव की प्रक्रिया होती है, डेमोक्रेसी है ऐसी, जिसमें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के द्वारा हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रत्येक को एक वोट देने का अधिकार है। अगली बात आती है Indian democracy. It is the largest democracy of the world. But it is good to see that citizens enjoy their freedoms and rights to its fullest in India. People elect their government and can change the same after a fixed period of time. I hope learners, you know, elections in India are held after every 5 years. 5 साल बाद अगर आपको कोई सरकार पसंद नहीं आ रही है तो आपको एक और मौका मिलता है कि आप अपनी वोट का इस्तेमाल, आप अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल करते हुए ऐसी सरकार को लाएं जिसको आप पसंद करें। एंड भारत में तो ये बहुत ही खूबसूरत सा रहा है कि देयर आर मल्टी पार्टीज इन इंडिया। बहुत सारी पार्टियां हैं,
बहुत सारी पार्टियां हैं तो बहुत सारी चॉइस है, बहुत सारी चॉइस है, तो उन बहुत सारी चॉइसेस में हम सबको एक बार अगर मौका देकर हम जज करते हैं कि कौन सी इस देश के लिए बेहतर सरकार है। और इसी की वजह से आप देखते हैं कि कभी कभी कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में जाती ही नहीं है, एंड वी हैव टू मेक अ कोएलिशन और गठबंधन सरकार। A citizen can criticize the government in a democracy and can make any demand from the government. डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि एक इंडिविजुअल सिटीजन भी सरकार के खिलाफ लड़ सकता है, अपनी बात को कह सकता है। इट इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देयर इज अ डिफरेंस, लिटिल डिफरेंस, रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ। एक वर्ड के डिफरेंस से बात बिल्कुल विभिन्न या भिन्न हो जाती है। सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। जो लॉ है उसके अनुसार सरकार जो है अपना काम करेगी। एंड अगेन, independence of judiciary, fundamental rights to the citizens, free and fair elections, and freedom of press. These are the certain aspects of democracy which are followed in democratic country like India. Now, another constitutional value is India is a republic. इसके बारे में भी हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं कि इंडिया जो है वो रिपब्लिक है। कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक मोनार्की रूल होता है जिसमें राजतंत्र, जिसको हम कहते हैं राजा शासन करता है, एक एरिस्टोक्रेसी होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है, एक डिक्टेटरशिप भी होता है और एक डेमोक्रेसी भी होता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक डिक्टेटरशिप या मोनार्की में कोई एक व्यक्ति अपनी शक्तियों का बिना किसी अंकुश के इस्तेमाल करता है, राइट? ऐसे ही एरिस्टोक्रेसी में कुछ लोग के हाथों में शक्तियां होती हैं। पावर्स इज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, फ्यू। एंड इन अ डेमोक्रेसी, power is in the hands of almost all the countrymen, all the citizens. We, in India, we say we are republic because head of the state, that is the president of the country, is elected by the people indirectly. मोनार्की को कोई इलेक्ट नहीं करता, राजा का बेटा राजा। एरिस्टोक्रेसी अपने हाथों में तख्ता पलटकर सत्ता लेते हैं। जो कुछ विशेष प्रभावशाली लोग हैं वो देश में गवर्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। ये सब वोट देंगे और फिर अपने में से किसी को चुनेंगे। तो हेड ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो, जो देश का प्रमुख फर्स्ट सिटीजन है, प्रेसिडेंट, वो भी चुना जाता है। एनी सिटीजन कैन एस्पायर फॉर दिस ऑफिस। ऐसा नहीं है कि आप देश के राष्ट्रपति नहीं बन सकते या देश का राष्ट्रपति बनने की सोच भी नहीं सकते। Yes, you can also aspire for this office and you have the right to contest as per the political equality. और आपको पूरा अधिकार है चुनाव में प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए कंटेस्ट करने का। No one can be the head of the state on the basis of hereditary. Now, 26 January, we celebrate it as Republic Day of India. यही रिपब्लिक का मतलब जो मैंने बताया, इसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं। कब? 26 जनवरी को। Republic Day has been celebrated every year in India on January 26 since 1950 to honor the date on which the Constitution of India came into effect. ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों ने किस प्रकार 26 जनवरी को क्यों हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं।
26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज 1929 में एक लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का। 1929, ये जो 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। और इसमें दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। पहला निर्णय कि लाल किले पर झंडा फहराया जाएगा अब से। इस निर्णय के बाद 1930 से लाल किले पर झंडा फहराया जाने लगा और साथ ही में पहली बार 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो अब मैंने आपको मेंशन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। हम 26 नवंबर 1949 को भी संविधान अपना लागू कर सकते थे, लेकिन हमने 2 महीने वेट किया और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया। ऐसा इसलिए हमने किया टू ऑनर दोज एंड टू recognize the efforts of those who played a vital role in the struggle of India's independence. जिन्होंने 29 में ये डिसाइड किया था कि हम जो हैं रिपब्लिक हैं, हम लाल किले पर झंडा फहराएंगे, उन लोगों को याद करने के लिए ये सवाल ही तब आया जब हमने उन लोगों का जिक्र किया। ये जिक्र आता रहे, इसीलिए हम लोगों ने शायद 26 नवंबर को संविधान लागू न कर कब लागू किया हमने संविधान? 26 जनवरी 1950 को। नाउ नेक्स्ट इज जस्टिस। एक और शब्द आया था प्रीएम्बल में, जस्टिस। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव included the social, economic and political justice as the constitutional value. यानी कि न्याय दिया जाएगा और न्याय जो दिया जाएगा वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किसी भी आधार पर सबको बराबर रखकर न्याय दिया जाएगा। यहाँ पर कभी कभी मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है इन पिक्चर्स को देखकर कि अंधा कानून लोग कहने लगते हैं क्योंकि इसकी आंखों पर पट्टी है। इसकी आंखों पर पट्टी इसलिए नहीं है कि ये अंधा कानून है, इनफैक्ट इसकी आंखों पर पट्टी इसलिए है कि सामने वाला रिच है, पावरफुल है या गरीब है, न्याय ये नहीं देखेगा। न्याय तोलेगा, गवाहों के सबूतों के आधार पर निर्णय दिया जाएगा। सो having a democratic country alone does not ensure justice. याद करिए जनरल मुशर्रफ और याद करिए नाजिज्म यानी कि हिटलर के बारे में। कुछ देश जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहना चाहते हैं, और प्रेजेंट एग्जाम्पल में आप चाइना को भी ले सकते हैं। सम कंट्रीज थिंक दैट और क्लेम दैट दे आर डेमोक्रेटिक क्योंकि उनके यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पर इलेक्शन हो रहे हैं या कहीं पर संविधान है तो वो एक ट्रू डेमोक्रेसी है। ट्रू डेमोक्रेसी के लिए देयर शुड बी इक्वालिटी इन द जस्टिस इन ऑल द 3 spheres, whether it is social, economic or political. Sometimes, mainly, we see political justice is denied. इसीलिए हमारे देश में संविधान में साफ साफ लिख दिया गया, social, economic, political justice are the constitutional values. By doing this, they have stressed और जोर दिया उन्होंने political freedom पर, which is granted to the Indian citizens based on socio-economic justice. Next is कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, जैसे मैंने बताया, पॉलिटिकल फ्रीडम पर जोर देते हुए हर जगह आम आदमी को भी इतना निर्भीक बनने और साहस दिया है कि वो जस्टिस के लिए कोर्ट में जा सकता है। नेक्स्ट कम्स द वर्ड लिबर्टी। लिबर्टी, आजादी। किस तरह की आजादी?
The preamble prescribes liberty of thought, expression, belief, faith and worship. स्पेशली और भी तरह की आज़ादी हैं आपको, लेकिन जो सबसे अच्छी आज़ादी मानी गई है वो है आपकी आज़ादी थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की। और ये हम देखते हैं कि किस तरह से दी गई है, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू दी गई है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी, ये सब क्लस्टर ऑफ सेवरल राइट्स हैं। जैसे राइट टू फ्रीडम जो है, इट इज अ क्लस्टर ऑफ 6 more राइट्स, 7 more राइट्स। तो इस तरह के अधिकारों से हमें क्या फायदा होता है? जी हाँ, हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, इंडिविजुअल। हम जिसकी पूजा करना चाहते हैं, जिसकी प्रार्थना करना चाहते हैं, जिस धर्म को मानना चाहते हैं, जिस बिलीफ को मानना चाहते हैं, और जो बात हमारे मन में है अगर हम उसे कहना चाहते हैं वो भी हम कह सकते हैं। We have freedom of thought, we have freedom of worship. These are in the Constitution of India. Freedom of expression भी है हमें। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, इट इज द फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियन and to receive and impart information without any interference by public authority and even regardless of frontiers. Freedom of expression क्या है कि आप अपनी बात को, you are free to speak, but you should have a logic and there should be a rationale behind this freedom of speech. एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? ऑलमोस्ट एक से हैं। फर्क क्या है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच में तो आप बोलते हैं किसी बात को, तो उसके लिए कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई रैशनल होना चाहिए। और जब एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं तो कोई आप पेंटिंग में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई कार्टून्स बनाते हैं अलग अलग लोग, अलग अलग टाइप के, उसमें अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई ड्रामा के थ्रू, कोई नाटक के थ्रू, कोई नुक्कड़ नाटक वगैरह, इनके थ्रू ये क्या है? आपका एक्सप्रेशन है, ये आपका एक्सप्रेशन है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपको ज्यादा ध्यान करना पड़ता है, एक्सप्रेशन में थोड़ा सा आपको फ्रीडम ज्यादा मिला हुआ है, क्योंकि आप विचारों से बोलकर ही नहीं, अपनी पेंटिंग्स के थ्रू, अपने कार्टून्स के थ्रू, अपने नॉवेल्स के थ्रू, अपने ड्रामा के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इक्वालिटी, समानता। Equality in our constitution means equality of status, opportunities, equal rights, equal treatment, and no discrimination before the law. Equality हमको मिली है, certain exceptions are there, like reservation is there. Equality हमारे लिए बहुत जरूरी है and it is a significant constitutional value. ये बहुत सिग्निफिकेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग एवरीबडी वांट्स रिस्पेक्ट, एवरीबडी हैज अ डिग्निफाइड सेल्फ एंड एवरीबडी वांट्स टू इंश्योर फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ द फुल एंजॉयमेंट। अर्लियर आपको पुराने समय की अगर याद दिलाऊं मैं, तो बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पर प्रोहिबिशन थे, कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लिए कह लीजिए या महिलाओं के लिए कह लीजिए, जिनमें कि हमारे इस अधिकार का हनन होता था। इक्वालिटी रिफ्लेक्टेड स्पेसिफिकली इन द प्रीएम्बल इज रियली एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू। एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। महिलाओं को समान अधिकार दिलाए गए, या कास्टिज्म को खत्म कर थ्रू रिजर्वेशन हमने कुछ लोगों को आगे आने के लिए बढ़ावा दिया। तो ये इक्वालिटी की ही वजह से आज आप देखते हैं कि जो सामाजिक भेदभाव हमारे देश में बहुत ज्यादा थे, वो आजकल कम होते जा रहे हैं। पीपल हैव बिकम
अवेयर। इक्वालिटी नहीं थी, इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ लोग भारत माता से भी उनकी कास्ट या सरनेम पूछ रहे हैं, वो पूरे देश की ना होकर दिस मैन वांटेड टू आस्क भारत माता कि वो कौन सी जाति की हैं। तो दिस इज अ कार्टून शोइंग, दिस इज एन एक्सप्रेशन बाय अ कार्टूनिस्ट दैट inequality existed in India in the past, so much so that even Bharat Mata is asked her surname. Next comes ye significant value another given in the constitution, that is respect given through the equality. Every person is equal socially, economically and regarding political rights. यहाँ पर महिला हो, पुरुष हो या दिव्यांग हो, उन लोगों को भी समानता का अधिकार मिला है, जिससे कि उनकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट में कोई कमी न आए। नेक्स्ट अनदर प्रोविजन इज इक्वालिटी में ही एक पॉलिटिकल इक्वालिटी की हम बात करते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है हमारे यहाँ, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, जिसके तहत सभी को वोट देने का अधिकार है। इस वोट देने के अधिकार में आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, कोई आपके खिलाफ क्रिमिनल केस या आप दिमागी रूप से स्वस्थ अगर हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है, चाहे आप कितने ही रिच हैं, चाहे आप कितने ही पुअर हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं, 18 साल से ऊपर हैं, स्वस्थ दिमाग रखते हैं और आप कोई क्रिमिनल नहीं है, तो आपको वोट देने का अधिकार है। और ऐसे केस में ऐसा नहीं है कि जैसे हमने फ्रांस की क्रांति से पहले वहाँ की कंडीशंस, यूरोपियन कंडीशंस में भी हम देखते थे कि किसी की वोट को तो कम आंका जाता है और किसी की वोट को ज़्यादा आंका जाता था, यानी वैल्यू इक्वल नहीं थी वोट की। भारत में पॉलिटिकल इक्वालिटी भी ग्रांट की गई है बाय 1 person 1 vote 1 value, right? And next most important is the rule of law. No one is above the law. Rule of law is based on principles of law. जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से कार्य होगा, ना कि रूल बाय लॉ। रूल बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ में फर्क क्या है? रूल बाय लॉ मीन्स दैट इट इज रिटन बाय द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी। किसी ने अपना एक लॉ बनाया और उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। रूल ऑफ लॉ इज व्हाट? रूल ऑफ लॉ इज कि जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ये नहीं कि हम कानून बना रहे हैं और फिर हमने कह दिया कि ये कानून बन गया और हम उसके हिसाब से रूल कर रहे हैं। Then comes fraternity, भाईचारा। भाईचारा तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि जो टॉलरेंस हमारे अंदर होनी चाहिए, इट इज कॉमन ब्रदरहुड। वी हैव अ प्लूरल सोसाइटी विच इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। प्लूरल सोसाइटी का मतलब होता है कि देयर इज सो मच डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में इतनी सारी विविधताएं हैं। अब इतनी सारी विविधताओं के बीच किस तरह से भाईचारा हमें व्याप्त रखना है? इस भाईचारे से क्या होगा कि हम प्रॉमिस करते हैं अपने देश को कि कॉमन ब्रदरहुड विल बी fostered among all the people of India. अगर फ्रेटर्निटी नहीं होगी तो क्या होगा? डिवीजन होगा, सोशल डिवीजन होंगे, समाज का बंटवारा होगा, देश का बंटवारा होगा। So to give meaning to all the kinds of ideals like justice, liberty, equality, preamble emphasize on fraternity. ये जो हमने इक्वालिटी, ये जो हमने लिबर्टी, ये जो हमने जस्टिस दिए हैं, फाइनली दिस विल कल्मिनेट इनटू फ्रेटर्निटी, भाईचारे के लिए ही दिए गए हैं।
This can be realized not only by abolishing untouchability amongst different sects of the community, और ये भाईचारा जो है बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करके ही लाया जा सकता है, जैसे कि हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी थी, उसको ख़त्म करके तभी तो भाईचारा आएगा. ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनल सेक्रेटेरियन एंड डिस्क्रिमिनेटरी फीलिंग्स, लोगों में जो भेदभाव की भावनाएं हैं उनको दूर करके ही हम ये ला सकते हैं भाईचारा. इसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं IFF, India's Fraternity Forum. It is an effort to work together with others to strengthen the Indian expatriate community and beloved motherland. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में मिलकर सब धर्म के लोग ऐसा काम करते हैं कि आपस में एक दूसरे के लिए भाईचारा और प्रेम की भावना सब में रहे. Next important value. Promotion of fraternity is essential to realize dignity of individual. जब तक भाईचारा नहीं होगा, जब तक हम सबको अपने बराबर और समान नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी भी व्यक्ति को इसका मतलब रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उसको कम आंक रहे हैं. एंड विदाउट प्रोवाइडिंग द डिग्निटी, अगर किसी को हम सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म कर रहे हैं किसी की, और किसी की तो हम नहीं कर सकते, हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और किसी को हम डिग्निफाइड वे में नहीं देख रहे हैं, तो वो हमारे देश के लिए वो ऐसी व्यवस्था से, ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम से कहीं ना कहीं नाराज रहेगा. और जब कोई भी व्यक्ति नाराज होता है या ग्रुप ऑफ पीपल एनॉयड होता है, तो डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर पाती है, उसमें बहुत सारे अड़ंगे आते हैं. और डिग्निटी जब रहती है तो सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल वे में. यहाँ पर आप देख रहे हैं, it is the dignity of the individual through which we are trying to abolish untouchability and discrimination of all kind. When we rank people by skill, sometimes though we have to, but sometimes इससे भी परेशानी हो जाती है. But when we rank people by dignity, तो हम देखते हैं कि सभी फर्स्ट हैं, सभी बराबर हैं, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाला हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो. नेक्स्ट इज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. टू मेंटेन the independence of the country and to make it intact, the unity and integrity of the nation is very essential. We have seen that fraternity promotes one of the critical values, that is unity and integrity of the nation. भाईचारा होगा तभी देश में एकता होगी, तभी देश में हम खुशहाल रह सकेंगे, तभी independence of the country will be maintained, which is very essential. वरना हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र के लोग, रीजनलिज्म भी है, कास्टिज्म भी है और रिलीजियसलिज्म भी है, इन सभी चीजों के होने की वजह से देश के कई टुकड़े हो सकते हैं. और इसीलिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इज वन ऑफ द constitutional value written in the Constitution of India, and it is very essential because then only we can maintain as one country. So we try to foster unity among all the inhabitants of the country, and हमारा संविधान एक्सपेक्ट करता है हर नागरिक से कि वो देश की और एकता और अखंडता को बनाए रखे. ये हमारा कर्तव्य है. अगर हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम देश की अखंडता और एकता को बनाए रखें.
ये आप देख भी रहे हैं हाल ही में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देन डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, सोशल डाइवर्सिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, बट एवरी सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट लीड्स टू सोशल डिवीजन। ये पहले भी अपने सेशन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी सामाजिक भिन्नता होती है वो सामाजिक बंटवारा नहीं लाएगी अगर हम एक मैच्योरिटी लेवल पर सोचें। सोशल डिफरेंसेस डिवाइड सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनदर, but they may also unite very different people. For example, teaching job को ही आप लीजिए, there is a social difference among the status, there is a social difference, gender difference ही आप कह लीजिए, या difference in the sex, male and females are there. But if they are working in the same institution, they feel united. In that institution, they are together considered one. So people belonging to different social groups sometimes share different views and they become one, and this is known as cross-cutting the boundaries of their group. I am a female, my colleague is a male, but together we are belonging to the same fraternity, that is teaching or teachers. So there we are united, we are cross-cutting that difference. इसी तरह से लार्जर पर्सपेक्टिव में और मैच्योरिटी से अगर हम सोचेंगे तो हम चाहे ईस्ट के रहने वाले हों, साउथ के रहने वाले हों, नॉर्थ के रहने वाले हों या वेस्ट के रहने वाले हों, हम लोग सारे मिलकर सबसे पहले क्या हैं? भारतीय हैं। वी आर इंडियन फर्स्ट, देन वी आर ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड कास्ट। इसके साथ ही another constitutional value written in the constitution is international peace and a just international order. यहाँ पर the value of international peace and a just international order, it is not mentioned in the preamble, but it is reflected in other provisions of the constitution. ये वहां पर तो मेंशन नहीं है प्रीएम्बल में, लेकिन हमारे संविधान के अंदर और पेजेस में इसका जिक्र है। जैसे कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं संविधान में, उनमें लिखा हुआ है कि टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी we will maintain just and honorable relations between the nations, will foster respect for international law and treaty obligations, will encourage settlement of international disputes by arbitration, and will uphold and observe these values in the interest of India. यानी कि हम लोग ऐसा नहीं है कि अगर हम शक्तिशाली हैं तो अपने लाचार और गरीब छोटे देशों पर आक्रमण कर उन्हें तंग करेंगे। हम विश्व में शांति बनाने का प्रयास करेंगे और जब हमारे आसपास शांति होगी तो हमारा देश भी सुरक्षित और हमारे देश में भी शांति बनी रहेगी। देखिए, आप कहीं पर रहते हैं, आपके पड़ोस में रोज दंगे होते हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका असर आप पर होगा। इसी प्रकार से अगर देशों के बीच, हेलो मैम 12:35, तो टाइम इज स्टिल 1 ना? नो मैम 12:30. Okay. So we have a power to unite the whole world. This is UNO symbol, United Nations Organizations 1945 में जो बना, जो इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और इसके लिए काम करता है। We have International Law Association. International Law Association is a non-profit organization and it promotes the study of clarification and development of international law. This is International Court of Justice Hague in Netherlands. And another important aspect of constitution is we are supposed to do some duties that citizen of India
these duties are important for each of us to perform. Without these duties, we cannot think of our rights. Then the values and the salient features of the Constitution. It is a written constitution. इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. It is a unique blend of rigidity and flexibility. As I told you कि ये संविधान में changes भी हम ला सकते हैं. There are 3 ways of amendments in the Constitution. We are provided with fundamental rights and duties. We have directive principles of state policy. जो स्टेट को डायरेक्ट करती हैं कि किस तरह का स्टेट में आचरण होना चाहिए. We have integrated system of court, that is we have Supreme Court, one court at the apex court जिसको हम कहते हैं सबसे बड़ा कोर्ट. उसके बाद हमारे हाई कोर्ट्स हैं स्टेट में एंड उसके बाद हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं. तो इंटीग्रेटेड मतलब गुथी हुई, जुड़ी हुई. आपको कोई केस अगर छोटे लोकल कोर्ट में डाला, वहां से सेटिस्फाइड नहीं है, यू कैन अपील टू द हाई कोर्ट एंड फाइनली यू कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. Then we have been provided single citizenship कि जैसे यूएसए में डबल सिटीजनशिप है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है. आप किसी भी क्षेत्र में रहिए, किसी भी राज्य में रहिए, आप नागरिक भारत के कहलाएंगे. वहीं संविधान में लिखा हुआ है कि हमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी कि सभी को वोट देने का अधिकार है. किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा. देन वी हैव फेडरल सिस्टम इन इंडिया. इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी कि व्हाट इज फेडरल स्टेट, जहां पर 2 या 2 से अधिक सरकार होती हैं. जैसे हमारे यहाँ क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है, राइट. तो हमारे यहाँ 1 से अधिक सरकार हो गई हैं, 2 हैं या 2 से अधिक हैं, तो वो हमारा फेडरल स्टेट है. ग्राम पंचायत भी है हमारे यहाँ, जो ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और हमारा ये तीसरा जो लेवल है गवर्नमेंट का. सभी को पावर को डिवाइड किया गया है, अच्छा रूल हो इसलिए. कुछ सब्जेक्ट्स जो देश की सुरक्षा से संबंधित हैं या पूरे देश से संबंधित हैं वो यूनियन लिस्ट में आते हैं. वे जो राज्य से संबंधित हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं और इसी प्रकार कॉन्करेंट लिस्ट में वो आते हैं जो दोनों से संबंधित हैं. इन पर यूनियन भी और स्टेट भी कानून बना सकते हैं मिलकर, और अगर किसी बात पर दोनों में बहस है तो यूनियन की मानी जाएगी. वी हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी. हमारा फेडरल सिस्टम है, बट यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आता है कि यूनिटरी एट हार्ट है भारत, कहने को हम फेडरल हैं. ये बात थोड़ी सी सही है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसा मैंने अभी बताया कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिस पर जब कानून बनते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बहस होती है तो यूनियन गवर्नमेंट प्रिवेल करती है, उसकी बात मानी जाती है. इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया इज यूनिटरी एट हार्ट. इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट which is very effective and has financial powers and responsibilities. The items generating revenue are under the control of the center. So we can say कि हमारा भारत कहने को संघात्मक है लेकिन उसकी आत्मा एकात्मक है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है और आप जानते हैं इसमें राज्यसभा और लोकसभा 2 सभाएं हैं हमारी. और लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कि who is the real head and who is the nominal head. ये भी हम जिक्र कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही, जैसा मैंने आपको बताया कि यूएसए में प्रेसिडेंट इज द रियल हेड, बट इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड. Thank you very much and I hope you enjoyed this session. I tried to cover all the topics and in nutshell I can say that India has a very beautifully written constitution. We must respect our constitution. Constitution is above all other documents, about all other authorities and above everyone. Thank you and have a nice day. Thank you, ma'am.